Hello everyone, how are you all? I hope you are all doing very fine. So let's start today's video. Guys, today's video is all about a question in JEE Mains 2021 which should have been given bonus, but none of the coaching institutes, none of the video solutions or PDF solutions has identified the error in this question, which I am going to point out right now. So guys, this video is for not only for students, it is for the entire JEE community, whether it be students, teachers, everyone, for us to realize that there is a mistake in the question that I am going to point out, which no one amongst us have ever identified up till now. So this is the first video in the entire country which claims that this particular question has an error in it and it should go to bonus. But sadly now it is too late for us to claim bonus right now. But still, the least what we can do is we need to realize that there is a mistake, and so that we don't repeat the similar kind of mistake or the same mistake again in the subsequent main attempts, right? Your March attempt is remaining, April attempt, even your advanced exam is remaining. So let me tell you this, guys. So this question, the actual solution of this question goes to advanced level, or I can say it becomes a tough level of advanced question, right? Tough question of advance, right? So let me first point out the error to you. So let us start. JEE Mains 2021, 24th February, shift 1. Question number is 21, or I think it's the first question of the second section. So you can read the question and please confirm by yourself, but I'm not sure exactly which question it was. If least and largest real values of alpha for which this equation in Z, which Z belongs to complex numbers, has a solution. The least value of alpha is P and the greatest value of alpha is Q, respectively. You have to find P square plus Q square into 4. Now the answer that NTA has reported is 10, and I am here to claim that this question is wrong. It should go to bonus. The answer is not 10. So let us start. So what everyone has done is everyone has started with Z is equal to X plus IY. We put Z ka value as X plus IY. So we get X plus I y plus alpha times mod of Z minus 1. So what is mod of Z minus 1? It is under root of x minus 1 the whole square plus y square plus 2 iota is equal to 0. So we club all the real parts. Z plus alpha times under root of x minus 1 the whole square plus y square, right? Plus iota times y plus 2 equal to 0. So these are two complex numbers. X plus iy, a plus ib is equal to 0. So we compare the real and imaginary part on both sides. That is what everyone has done. Okay. So we compare the imaginary part first. So y plus 2 should be equal to 0. This is very obvious. Y equals to minus 2. We get the value of y. So the entire further solution is we have to hunt for x, for real x, because here x and y are real numbers, right? X and y belongs to real numbers, so that z becomes a complex number, right? Okay, so y is equal to 2 is fine. This is the real part of this complex number, which should be equated to 0 because RHS also has a real part 0, right? So x plus alpha times under root of x square minus. Okay, so let's expand this. Let's just write this x minus 1 the whole square plus y square. Y की value minus 2 है, so we can write this as 4 equal to 0. Is this correct? अब क्या करें? X plus alpha times under root of. So can I write x as minus alpha times under root of x square minus 2x plus 5, right? So this is the equation that we get in x and alpha. Now what it was required to be done is you have to give me the range of values of alpha for which we get a real x. That's correct? Okay. So what we do is, now I will go by the faulty solution ahead and I will point out the error in it and then I will rectify it. Okay. Now the rectification part goes beyond advanced level, or you can say becomes a tough question of advanced level as well. So it goes much beyond mains level, but still we will stick to it and find the till the final answer, till I have proved it to you guys that this question should be a bonus. So let's do this. Okay. So what we have over here is x is equal to minus alpha times something positive. So
everyone what everyone has done is we have squared it. We squared both sides, so we get alpha x square is equal to alpha square into this quadratic in x square plus 2x plus 5. So what we will do is we will just make a quadratic in x square times we get alpha square minus 1 minus 2 alpha square times x plus 5 alpha square is equal to 0. Now this is the quadratic that we get in x, right? Now what everyone has done is what everyone has made d greater than equal to 0. See what we want real x. y we got -2, y की वैल्यू हमें -2 मिल गई है, राइट? और हमें अगर सोल्यूशन चाहिए तो x भी रियल आना चाहिए. अगर x रियल नहीं आया तो खत्म ना कहानी, राइट? x रियल नहीं आया तो खत्म हो गया ना. y की वैल्यू यहाँ पे x तो रियल नंबर है ना, तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक का d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिकॉज वी वांट x एज रियल नंबर, राइट? x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो इसीलिए हम d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे. नाउ द मोमेंट वी डू d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर की रेंज आ जाती है. अल्फा स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 5/4, I think, right? Please do the calculation. I am not here to give the exact solution which is absolutely faulty, but still, right? मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ. तो ये जो faulty solution है उसको मैं फटाफट कर रहा हूँ. Alpha square belongs to 0 to 5/4. Now what happens is alpha square belongs to 0 to 5/4 का इसका मतलब ये है कि alpha belongs to, अब देख लो, -5/√5/2 से लेकर प्लस √5/2, ये वैल्यू आती है अल्फा की, राइट? Now look at this. Now I'll come to the part where everyone has made a mistake. Now look at this equation. यहाँ पे मैं एक ऐसी चीज लिखाने वाला हूँ जो नहीं लिखा यार किसी ने, और उसी की वजह से ये क्वेश्चन बोनस क्लेम कर रहा हूँ मैं. Everyone look at this. ये जो क्वेश्चन है उसमें do you realize this that for any value of x and alpha, x and alpha must be of opposite signs. X and alpha must be of opposite signs. Yes, x और alpha जो है वो दोनों opposite signs के होने चाहिए. Because look at this. x ये अगर ये पॉजिटिव है ना, ये क्वांटिटी कुछ भी कर लो, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है ना, राइट? और ये होल स्क्वायर प्लस समथिंग है तो कोई टेंशन ही नहीं है, वैसे भी ये पॉजिटिव है ना, राइट? ओके, नाउ अगर x पॉजिटिव आया और अल्फा भी पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा ना, बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन, राइट? बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा, विच इज नॉट ट्रू ऑब्वियसली. सो व्हाट वी नीड टू एंश्योर थ्रू आउट द एंटायर सोल्यूशन दैट अगर अल्फा पॉजिटिव है तो x नेगेटिव होना चाहिए, और अगर अल्फा नेगेटिव है तो x पॉजिटिव होना चाहिए. दिस इज समथिंग दैट इज मिसिंग एवरीवेयर. तो x एंड अल्फा मस्ट बी ऑफ अपोजिट साइंस, है ना ये, राइट? x और अल्फा दोनों अपोजिट साइंस का होना चाहिए, सो दैट देयर इज अ साइन इन इक्वालिटी अलोंग, है ना? ये पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट? ये इक्वालिटी होल्ड करने के लिए x और अल्फा दोनों अपोजिट साइंस के होने चाहिए. लुक एट दिस ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव है. दोनों सेम साइन के हो जाए तो कैसा चलेगा यार? माइनस साइन है बीच में, राइट? तो x and alpha should be of opposite sign. This is what everyone should realize first. Okay, right? Now listen to this. अब क्या करते हैं देखो, है ना? इसके बाद क्या है, अल्फा की वैल्यूज आ गई. तो लोगों ने क्या बोला इसके बाद कि चलो अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है √5/2, और अल्फा की जो मिनिमम वैल्यू है वो है -√5/2. ओके, -√5/2. This is the maximum value of alpha. This is the minimum value of alpha. Okay. Now let me make you realize one thing कि maximum और minimum value आई का से, ये equality से आई है, extreme point से, boundary से आई है, right? जहाँ equality है वहाँ आई है ना, right? Alpha belongs to, alpha is greater than equal to -5/2 and less than equal to √5/2, है ना, right? तो ये equality से alpha की maximum और minimum value आई है. अच्छा, इसमें equality का मतलब d equal to 0, yes or no, right? d इक्वल टू 0 का मतलब क्या कि d इक्वल टू 0 से अल्फा की दो वैल्यूज आई है, और d इक्वल टू 0 का मतलब x आपको दोनों सेम वैल्यू देगा. तो लुक एट दिस, अल्फा की वैल्यू दोनों भी पुट कर दो. वैसे भी अल्फा स्क्वायर दोनों केस में सेम है, और अल्फा स्क्वायर जैसे ही आप इधर पुट करोगे ना पूरी इक्वेशन में, तो x में एक ही क्वाड्रेटिक बनेगा और उसका d इक्वल टू 0 होगा, उसमें x की वैल्यू आएगी 5 दोनों केस में. यू वांट टू इंडिविजुअली चेक, मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ. आप इस अल्फा की वैल्यू ये पुट करोगे इसमें और x की वैल्यू 5 आएगी, और ये पुट करोगे तो भी x की वैल्यू 5 ही आएगी, क्योंकि ये जो कंडीशंस है एक्सट्रीम कंडीशंस है. एक्सट्रीम कंडीशन में मतलब d इक्वल टू 0 होता है. एनीवेज चलो, तो ये हम
अल्फा की वैल्यू √5/2 पुट करके एक्स की वैल्यू 5 आ गई, लेट्स से, है ना ये राइट, और अल्फा की वैल्यू -√5/2 पुट करके भी एक्स की वैल्यू 5 आ गई. गाइस, डू यू सी द ब्लंडर नाउ? एवरीवन, डू यू रियलाइज द ब्लंडर? लुक एट दिस, लुक एट दिस, दिस इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि एक्स एंड अल्फा मस्ट बी अपोजिट साइन, सो दिस इज एक्सेप्टेबल. बट लुक एट द ब्लंडर ओवर हियर, look at the blunder over here guys. Is this value acceptable? अल्फा की वैल्यू √5/2 प्लस √5/2, जो हम अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्लेम कर रहे हैं, उस केस में एक्स की वैल्यू 5 आ रही है. चेक कर लो, आप लोग चेक कर लो, है ना, एक्स की वैल्यू 5 आ रही है, राइट. इज दिस एक्सेप्टेबल? Is the value of, is this value of alpha acceptable? Absolutely no, because उसमें अल्फा भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है. जस्ट इमेजिन, अल्फा पॉजिटिव गया, एक्स भी पॉजिटिव गया, तो ये साइड तो पॉजिटिव हो गया, ये साइड 5 हो गया. बेसिकली ये पॉजिटिव है और ये नंबर कुछ भी कर लो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव. इज दिस पॉसिबल? एब्सोल्युटली नो, राइट. सो दिस इज अ ब्लंडर. तो अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो √5/2 तो बिल्कुल नहीं है. दिस इज व्हाट एवरीवन मस्ट फर्स्ट रियलाइज, कि अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू √5/2 तो बिल्कुल नहीं है, राइट. अल्फा की वैल्यू कुछ और है, मैक्सिमम वैल्यू वही ही हमें निकालना है. ये वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे एवरीवन, लेकिन √5/2 तो बिल्कुल नहीं है, ये बात क्लियर है. ओके, सो नाउ लेट अस प्रोसीड एवरीवन एंड गो टू द एक्चुअल अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू. ये वीडियो का एक सैड एंडिंग होने वाला है. यू नो व्हाई? बिकॉज अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती. मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा. एंड दैट इज व्हाई द क्वेश्चन शुड गो टू बोनस. एंड इन दिस वीडियो आई विल ऑल्सो टेल यू एग्जैक्टली अगर क्वेश्चन में क्या चेंज करता तो क्वेश्चन बोनस नहीं होता बल्कि आंसर चेंज हो जाता बस, राइट. So I would tell you that also. Okay, so I hope everyone has understood कि why there is a blunder. अल्फा की मिनिमम वैल्यू तो एक्सेप्टेबल है यार, बट अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू जो है ना, क्योंकि मिनिमम वैल्यू के केस में हमें जो चाहिए था वो कर हमने. अच्छा, मैं ये हुआ क्यों बेसिकली, क्योंकि हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, राइट. किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ जब भी स्क्वायर करते तो ऐसे ब्लंडर्स होते हैं, राइट. पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव आ जाता है, ये इनइक्वालिटीज वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं, राइट. राइट, तो हमने ये इस चीज को जब स्क्वायर किया ना, तो स्क्वायरिंग इज अ डेंजरस मेथड. ओके, राइट. तो ओके, सो ये ब्लंडर हुआ. ओके, तो स्क्वायर करने के टाइम पे हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए था कि आंसर जो फाइनली आ गए वो उसमें कोई साइन एरर नहीं हो, है ना, ये पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव वाला प्रॉब्लम नहीं हो. तो व्हाट आई विल डू इज लुक एट दिस. दिस वाज द क्वाड्रेटिक अल्फा स्क्वायर -1 टाइम्स एक्स स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर टाइम्स एक्स प्लस 5 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दिस वाज द क्वाड्रेटिक दैट वी गेट. ओके, नाउ एवरीवन लिसन टू दिस. ओके, अल्फा की जो मिनिमम वैल्यू है वो आ गई -√5/2 एंड इस केस में एक्स की वैल्यू 5 है. ये वैल्यू तो हमें एक्सेप्टेबल है, ये मैं लिख लेता हूँ क्योंकि है ना, इसको देख देख के खुशी हो रही है मुझे कि चलो अल्फा की मिनिमम वैल्यू तो यार एक्सेप्टेबल आ गई, है ना, इसमें कोई हमें टेंशन नहीं है, राइट. नाउ लिसन टू दिस एवरीवन. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, क्या एक्स की वैल्यू रियल आने के लिए d0 जो है वो तो मस्ट कंडीशन है ना, मतलब हमने जो कंडीशन लगाया उसके बाहर जाके तो कोई आंसर अल्फा की वैल्यू नहीं आ सकती है ना. मतलब कोई ये सोच रहा है क्या कि अच्छा मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू गलत आ गई, मिनिमम वैल्यू से भी हो सकता है कुछ गलत है ना, ऐसा हो सकता है क्या, राइट. नहीं ना, क्योंकि d = 0 इज अ मस्ट कंडीशन, d > 0, बिकॉज d > 0 होना ही चाहिए, बिकॉज तभी तो आपको एक्स रियल मिलेगा यार, है ना. तो d > 0 से अल्फा की वैल्यू है ना, d > 0 से हमें अल्फा की जो वैल्यू आ गई ना वो -√5/2 से लेकर +√5/2 है ना. नाउ माय पॉइंट इज लुक एट दिस. अब सोचो एवरीवन, लिसन टू दिस. नाउ यू कैन ऑल पॉज दिस वीडियो राइट नाउ एंड थिंक ऑफ योर ओन इनोवेटिव सोल्यूशन. आई वुड लव इफ आई गेट अ मच मोर इनोवेटिव सोल्यूशन देन दिस, बट मैं जो बता रहा हूँ ना, it is absolutely very good. Listen to this. This goes at an advanced level. That is why you all must be very excited to know the solution further on. Okay, so look at this. d > 0 से जो कंडीशन आई ना अल्फा की, दैट इज अल्फा बिलोंग्स टू -√5/2 से +√5/2. मतलब ये तो होना ही चाहिए, इसके बाहर अल्फा जा ही नहीं सकता, बिकॉज वो तो इसके ये तो वो कंडीशन है जिसमें एक्स रियल है. ओके, उसमें से जो ये जो लीस्ट कंडीशन है ना, लीस्ट वाली ऑफ अल्फा, वो एक्सेप्टेबल है. तो अल्फा मिनिमम पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट जो अल्फा मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा √5/2, ये पॉसिबल नहीं है. मतलब हम इसके आगे तो जा ही नहीं सकते, बिकॉज ये तो लीस्ट मिनिमम बेयर मिनिमम कंडीशन है,
और अंडर रूट ऑफ 5/2 नहीं पॉसिबल है, राइट? तो अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना वो अंडर रूट ऑफ 5/2 यानी 1 पॉइंट समथिंग से छोटी आनी चाहिए। अब वो क्या होगी वही जज करने के लिए व्हाट आई विल सी इज, रुको एवरीवन, ठीक है, अभी मैं सबसे पहले मैं थॉट प्रोसेस बता रहा हूं कि मैं कैसे सोच के पहुंच रहा हूं। अल्फा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 5/2, राइट, इससे छोटी होनी चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा नेगेटिव भी तो हो सकता है, मतलब देखो ये तो माइनस मिनिमम वैल्यू ये आ गई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा क्या नेगेटिव हो सकता है क्या? वो देखने के लिए मैं क्या करूंगा ना, थोड़ा सा स्मार्टली जीरो पुट करके देखूंगा, है ना? चेक एट जीरो, चेक एट अल्फा इक्वल टू जीरो, अल्फा इक्वल टू जीरो जरा पुट तो करो एवरीवन, ये भी जीरो होगा ये भी जीरो होगा, यू गेट माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स की वैल्यू जीरो आ गई विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, मतलब अल्फा इज इक्वल टू जीरो इज करेक्ट, यस, राइट? इतना समझ में आ गया कि जीरो वैल्यू जो है ना अल्फा की वो चलेगी, है ना? जीरो वैल्यू भी चलेगी क्योंकि एक्स की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू जीरो पुट करने पे हमें जो एक्स की वैल्यू चाहिए वो रियल नंबर आ रही है ना? तो जीरो वैल्यू ऑफ अल्फा इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल, राइट? सो नाउ वी कम टू क्लोजर टू अ सोल्यूशन कि अच्छा इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो जीरो से बड़ी होगी, राइट? तो अल्फा मस्ट बी पॉजिटिव, सो देयरफॉर अल्फा मैक्सिमम मस्ट बी पॉजिटिव बट नॉट अंडर रूट ऑफ 5/2, ठीक है? अल्फा मैक्सिमम मस्ट बी पॉजिटिव। तो मैं अगर अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू हंट करना चाहता हूं और उसमें अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो बट देयरफॉर व्हिच मींस दैट एक्स मस्ट बी नेगेटिव, उस केस में एक्स नेगेटिव होना चाहिए कि नहीं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर माय यूनिक सोल्यूशन, राइट? राइट, मेरा जो सोल्यूशन है इतना इनोवेटिव वाला, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। लुक एट दिस, मैं अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू हंट करना चाहता हूं और वो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जीरो पुट करके देखा मैं, तो जीरो तो एक्सेप्टेबल है, तो उससे भी बड़ी एक्सपेक्ट करता हूं मैं कुछ वैल्यू में, आई एम एक्सपेक्टिंग कि जीरो से भी बड़ा कुछ आ जाए, और जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, मतलब अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू जो हंट कर रहा हूं वो पॉजिटिव हंट कर रहा हूं। अगर मैं अल्फा हंट कर रहा हूं पॉजिटिव तो एक्स तो नेगेटिव होना चाहिए ना, वाई? रिकलेक्ट दिस, अल्फा एंड एक्स मस्ट बी ऑफ अपोजिट साइंस, यस, ओके ग्रेट। तो अब मैं ये लगाऊंगा, लुक एट दिस, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, अब सोचो, मुझे x की जो वैल्यू चाहिए ना, रूट, बेसिकली ये जो रूट चाहिए ना, रूट मुझे नेगेटिव चाहिए, सो दिस गोज टू द क्वेश्चन ऑफ लोकेशन ऑफ रूट्स, मुझे x के नेगेटिव रूट्स चाहिए, है ना? तो कैन आई से दैट अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू के लिए टू कैलकुलेट अल्फा मैक्सिमम, टू कैलकुलेट अल्फा मैक्सिमम, yeah, so calculate alpha max, the condition that we need to apply of location of root is, location of root, the condition that we need to apply is, look at this everyone guys, at least one negative root, right? This is the condition that we need to apply, at least one negative root. Now I'll explain you why I made why I came to this conclusion that at least one negative root. Now listen to this, देखो क्या है ना कि जब अल्फा पॉजिटिव चाहिए तो एक्स नेगेटिव चाहिए, राइट? ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर इस इक्वेशन का दोनों रूट पॉजिटिव आ गए, राइट, तो चलेगा क्या? तो उससे हमें अल्फा नेगेटिव एक्सेप्ट करेंगे ना हम, राइट? और नेगेटिव अल्फा तो हमें चाहिए ही नहीं बिकॉज वी हैव आइडेंटिफाइड जो अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पॉजिटिव है, राइट? ठीक है, तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव है तो उस केस में रूट नेगेटिव आना चाहिए। तो अब रूट नेगेटिव का मतलब क्या? एक रूट नेगेटिव होगा तो भी चलेगा ना? देखो अगर इस इक्वेशन का एक रूट नेगेटिव होगा ना तो उसके लिए हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। सो इन लोकेशन ऑफ रूट में क्या होता है, वी अप्लाई कंडीशन लाइक एटलीस्ट वन रूट नेगेटिव, इससे अल्फा की रेंज आती है, राइट? तो उस अल्फा की रेंज में से जो हमें मैक्सिमम पॉजिटिव अल्फा मिलेगा वो मैं एक्सेप्ट करूंगा, ओके? तो नाउ लिसन टू दिस, एटलीस्ट वन रूट नेगेटिव की मैं कंडीशन लगा रहा हूं, तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं। एटलीस्ट वन रूट नेगेटिव का मतलब क्या कि बोथ रूट नेगेटिव, बोथ नेगेटिव रूट्स, और एक और केस क्या हो सकता है कि एग्जैक्टली वन नेगेटिव रूट, है ना? ये सबको पता होगा, वन रूट नेगेटिव, है ना? या तो दोनों रूट्स नेगेटिव हो गए या तो एक रूट नेगेटिव होगा, एग्जैक्टली एक रूट नेगेटिव होगा। तो लुक एट दिस, अगर आप चाहते हो कि इसके दोनों रूट नेगेटिव हो गए तो कंडीशंस क्या क्या लगाते हो कि बेसिकली डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन तो लगेगी ही, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमने पहले से लगा चुके हैं। तो यहाँ पे मैं अदर फर्दर कंडीशंस लगाता हूँ, सम मस्ट बी नेगेटिव, क्योंकि दोनों रूट्स नेगेटिव है तो सम मस्ट बी नेगेटिव, और दोनों रूट्स नेगेटिव है तो इसका प्रोडक्ट मस्ट बी पॉजिटिव, है ना? द प्रोडक्ट मस्ट बी पॉजिटिव क्योंकि दो नेगेटिव रूट्स है, करेक्ट? नाउ
नाउ लुक एट दिस, अगर सम नेगेटिव है तो व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स माइनस दिस बाय दिस, मतलब क्या 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी नेगेटिव, सम मस्ट बी नेगेटिव एंड द प्रोडक्ट मस्ट बी पॉजिटिव, प्रोडक्ट मस्ट बी पॉजिटिव मतलब दिस अपॉन दिस, यानी 5 अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी पॉजिटिव। नाउ लुक एट दिस गाइस, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लग रहा है क्या? ये दिस इज नॉट पॉसिबल वाला कंडीशन नहीं लग रही है क्या? बोलो एवरीवन, रियलाइज हो गया कि ये नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन है। क्यों? क्योंकि यार देखो ये 2 अल्फा स्क्वायर, देखो ये दोनों सेम ही तो है, सिर्फ 2 अल्फा स्क्वायर अपन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 है और 5 अल्फा स्क्वायर अपन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 है। 2 और 5 को हटा दो, तो यू वांट अल्फा स्क्वायर अपन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 टू बी नेगेटिव एंड अल्फा स्क्वायर अपन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 टू बी पॉजिटिव एट द सेम टाइम। ऐसे कैसे हो सकता है यार? तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो एटलीस्ट वन नेगेटिव रूट की वाली कंडीशन में से जो बोथ रूट नेगेटिव है ना, उसको मैंने एलिमिनेट, वो नॉट पॉसिबल हो गया। तो नाउ वी कम टू दिस पार्ट के एग्जैक्टली वन नेगेटिव रूट, एग्जैक्टली वन नेगेटिव रूट की कंडीशन क्या होती है? एवरीवन नोज दिस, a इनटू f ऑफ a मस्ट बी लेस देन 0, है ना? और इस केस में a क्या है? 0 ना, राइट? तो बेसिकली व्हाट यू वांट इज आइदर द ग्राफ शुड बी लाइक दिस, जिसमें एक रूट नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, और यू वांट द ग्राफ टू बी समवॉट लाइक दिस, राइट? जिसमें है ना, राइट? नाउ एवरीवन लिसन टू दिस, अगर इसमें दिस इज a पॉजिटिव है तो 0 पे वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तो a पॉजिटिव 0 पे वैल्यू नेगेटिव, और a नेगेटिव है तो 0 पे वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो है ना? तो a इंटू एफ ऑफ 0 शुड बी लेस देन 0। तो व्हाट इज a ओवर हियर? अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 0। व्हाट इज एफ ऑफ 0 ओवर हियर? 5 अल्फा स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 0। सो इसको सॉल्व करके हमें क्या मिल रहा है बोलो? अल्फा स्क्वायर basically what you get is alpha belongs to minus 1 to 1. Look at this, है ना? alpha alpha square तो positive है, alpha square must be lesser than 1, alpha belongs to minus 1 to 1. Okay, now look at this, ये जो alpha की जो values है ना, इसके लिए exactly one negative root आएगा, exactly one negative root आएगा। ओके, राइट? अब सुनो एवरीवन, ओके, तो हमें जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा निकालनी है ना, वो इसमें से होनी चाहिए। व्हाई? बिकॉज हमें अल्फा मैक्स निकालने के लिए हमें रूट नेगेटिव चाहिए, राइट? क्योंकि अल्फा मैक्स की कोई भी वैल्यू हमें एक्सेप्टेड नहीं होगी, क्योंकि उसमें रूट मस्ट बी नेगेटिव। वो ही वैल्यू अल्फा की एक्सेप्ट होगी जिसमें एक्स और अल्फा अपोजिट साइंस के है। ये तो स्टार्टिंग से हमने देखा। तो देखो यार एवरीवन, एक नेगेटिव रूट के लिए अल्फा की वैल्यू मुझे क्या चाहिए? 0 से 1, है ना? ये देखो एक एटलीस्ट एग्जैक्टली वन नेगेटिव रूट के लिए, एग्जैक्टली वन नेगेटिव रूट के लिए अल्फा माइनस वन से 1 होना चाहिए। दैट्स करेक्ट, बट हमें एक्स और अल्फा अपोजिट साइंस के चाहिए ना, अपोजिट साइंस चाहिए ना, एक्स और अल्फा अपोजिट साइंस चाहिए। तो अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 1 बोल सकता हूं क्या मैं? बट इन एनी केस गाइज, मुझे बताओ कि ये जो अल्फा की जो वैल्यूज है 0 to 1, इस केस के लिए रूट भी नेगेटिव आएगा, एक रूट नेगेटिव आएगा और अल्फा भी पॉजिटिव आएगा, मतलब रूट्स अल्फा और एक्स दोनों अपोजिट साइंस के भी आएंगे, राइट? और एक रूट बेसिकली एक रूट नेगेटिव भी आएगा। तो हमारे ये सिचुएशन जो है वो आ गया फाइनल आंसर कि अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 1। नाउ द ओनली प्रॉब्लम इज कि ये जो अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 1 है, उसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा इज नॉट डिफाइंड। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा इफ अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 1? इट इज एब्सोल्युटली नॉट डिफाइंड। तो अल्फा मैक्स इज नॉट डिफाइंड। Why? Because यार alpha can be as close to 1 as possible, but can it be 1 according to this relation? No. तो खत्म ना क्वेश्चन। तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 को टेंड कर रही है। नाउ इफ आई एम टेलिंग यू कि अगर ये एडवांस में क्वेश्चन आता तो मैं ये बोलता कि इसमें फाइंड इफ द लिमिटिंग लीस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यूज अगर पूछता ना, लिमिटिंग लीस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू, तो मैं बोलता कि लिमिटिंग लीस्ट तो एग्जिस्ट कर रही है, बेसिकली उसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, बट लिमिटिंग लार्जेस्ट वैल्यू इज 1। अल्फा की लिमिटिंग लार्जेस्ट वैल्यू इज 1 because exact largest value does not exist. The limiting largest value, देखो alpha can go to as close to 1 as possible, but it cannot be 1, right? So the entire gist of the question is d greater than equal to 0 करने से अल्फा की दो वैल्यूज आती है, -√5/2 और +√5/2। ये मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। मिनिमम में x है ना, तो बेसिक कंडीशन इज x एंड अल्फा शुड बी ऑफ अपोजिट साइंस। इस केस में x एंड अल्फा अपोजिट साइंस का आता है, बट इस केस में x एंड अल्फा अपोजिट साइंस के नहीं आते। तो द जिस्ट इज कि हमें इसको एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा। नाउ वी चेक 0 पे चेक किया तो यस 0 पे रूट आ रहा है ना? 0 पे x की वैल्यू रियल आ रही है, तो अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना? अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू अगर पॉजिटिव होनी चाहिए तो उस केस में रूट नेगेटिव होना चाहिए। तो आई विल अप्लाई द कंडीशन फॉर एटलीस्ट वन नेगेटिव रूट।
जिसमें से बोथ नेगेटिव रूट में नॉट पॉसिबल कंडीशन आ गई और एग्जैक्टली वन नेगेटिव रूट में ये कंडीशन आ गई, अल्फा -1 to 1। अच्छा अल्फा -1 to 1 है, रूट तो नेगेटिव है लेकिन अल्फा पॉजिटिव चाहिए, अल्फा पॉजिटिव चाहिए तो इसका मतलब -1 से 1 में पॉजिटिव चाहिए, मतलब ये। अब यहाँ आके हम देखते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा, नॉट अचीवेबल। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा इज एक्चुअली टेंडिंग टू 1, राइट। 0 से 1 में कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती। अगर यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आता तो फिर मैं आंसर 1 बोलता, समझा ये, राइट। और अच्छा एक और चीज यहाँ पे नोटेबल है कि इसको ना एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमें ये करना चाहिए, है ना। खैर इसमें ज्यादा यूज नहीं होगा। हम यहाँ पे सारा कुछ क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट लगा रहे हैं ना। वी आर रिजेक्टिंग द केस वेर इन दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाला केस लेके देखना पड़ेगा, पता है आपको। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाला केस लेके देखना पड़ेगा। तो अल्फा स्क्वायर अगर 1 हो गया ना तो ये क्वाड्रेटिक का एक्स की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। चेक कर लो, एक्स की वैल्यू 5/2 आ गई। ये चले गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई 5/2, है ना। एक्स की वैल्यू 5/2 आई मतलब क्या, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू +-1 आया ना। अब फिर से क्या होगा बताए, अल्फा इक्वल टू -1 और एक्स इज इक्वल टू 5/2 एक्सेप्टेड होगा, बट अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 5/2 ये फिर से नॉट एक्सेप्टेड होगा, है ना, राइट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि ये एक्सेप्टेड है तो ये अल्फा इक्वल टू -1 आया, एक्स इज इक्वल टू 5/2, बट अल्फा नेगेटिव आया ना। हमने नेगेटिव में लीस्ट वैल्यू ऑलरेडी ढूंढ ली है, -√5/2 विच इज स्मॉलर देन -1। नेगेटिव √5/2 और भी छोटा है -1 से, तो ठीक है हम उसी को रहने देंगे मिनिमम वैल्यू। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू उसमें से जो 1 है उसमें √5/2 है, तो ये भी नहीं चलेगा। ये भी अल्फा और एक्स दोनों सेम साइन के हो गए। सो द एंटायर प्रॉपर, दिस इज द प्रॉपर क्रिस्प सोल्यूशन, इसमें कोई एरर नहीं है, राइट। तो ये पूरा करने के बाद मैं कंक्लूजन पे आता हूं कि दिस क्वेश्चन शुड गो टू बोनस, दिस क्वेश्चन शुड बी गिवन एज बोनस क्वेश्चन, बट if we cannot do anything about it right now। but guys एक चीज समझो, the main purpose of giving you this video is मुझे आप सबको बेसिकली स्टूडेंट्स सबको रियलाइज करवाना है कि guys everyone please don't square carelessly। whenever you have to square both sides you have to think and square। कई साइन की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, स्क्वायरिंग इज अ डेंजरस मेथड। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ रॉन्ग मेथड, it's a dangerous method। Squaring can give you wrong solutions, you have to check your solutions in the end। That is exactly what I wanted you to realize। Thank you so much guys, thank you all।